So Abhijit, tell me about the first classification. Classification about invention and tangible. It's a intangible and tangible. I am asking that. Tangible or tangible? Okay, so what is tangible and intangible? What is the difference between that? Intangible, those are not seen and sense anything. And but we are like teaching. They are not seen, but teaching are there. And tangible is just like computer and other things. Okay. They are tangible. Okay. Okay, Abhijit. Good. Next, Priya. Priya, tell me other classification of the product. Now, on the basis of function life of the product, first durable and non-durable. Durable means which is kept for a long period of time, and non-durable which is not kept for a long period of time. Example of durable goods is fridge, sofa, AC, fan, etc. And example of non-durable goods is edible products or grains, fruits. Okay, good. Piyush, you were raising the hand? Yes, ma'am. Yes, Tell me the another classification. And based on the product development, implication, product, look like product, novelty, good product. Based on the two things, what is that? Innovation and? Ma'am, imitation product, look like product, and novelty, good product. Okay, next. कौन था रोहित? Yes, ma'am. On the basis of usage in which consumer and industry. Very good. So consumer goods and industrial goods. What is the industrial goods? क्या होंगे industrial goods वगैरह में? Raw materials, machines, plants, all these comes under the industrial goods. When we are talking about the consumer's good or end user is consumer, that will be the normal thing like bread, butter, and other things like refrigerators, whatever you want to say, that will come under the consumable goods, and the user is consumer. ठीक है, जब इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होगा तो दे आर बेसिकली टेकिंग यूजिंग द रॉ मटेरियल, मशीनरी, जो भी उनको इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज आएगा. ठीक है, तो ये हो गए चारों टाइप के. एंड हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट ऑल द 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन? Anyone else? Okay, Ashutosh, tell me. Ma'am, first on the basis of tangibility, and under this they are classified into 2, tangible and intangible. Tangible is tangible product that can be feel and touched, like any food that is then tangible product that can be seen or touched, such as we are using refrigerator, generator, etc. And second one is intangible that can't be seen and touched, like services, education, teaching. That's and on the basis of secondary user, that is consumer and industries. Consumer, that is bread and butter, and second one is industry, that is like raw materials and machinery under the industry, and third one is on the basis of function, and under this they are classified into 2, in durable product and non-durable product. Durable product are those products that can be for a long time period. For example, refrigerator and all. And non-durable product in non-durable product like food items, grains, etc. And fourth one is on the basis of product development, and under this they are classified into 2. First one is innovation, and second one is imitation. Innovation, that can innovation in innovation, something can be new, such that the product can be used for first time and can be developed for first time. And the second was imitation. In imitation, they copy from the innovative product and they use as a product. That's all on the 4 points. Okay.
चलिए, then we just need to move toward the next topic, and that is significance. In last class we were doing that. What are the basically significance of the product strategy, यानी product की strategy जो है उसकी क्या फायदे, क्या significance है, क्यों जरूरी है. Then the first one was that achieve product market fit, यानी कि whatever product you are making that is suitable to the market, whatever consumer are basically demanding, you just need to make those product only. Okay, so we just discussed about the different concepts, right? In the last class, what were those concepts? Abhishek, tell me, what were those concepts which we discussed in the last class? We are talking about the marketing concepts, right? Yes, ma'am. Product concept, production concept and all. So according to that concepts, today India is, or any all country is based on the societal marketing concept. So whatever we are just making, just we need to analyze that is suitable for the market or not. तो ये सबसे पहला significance होगा, ठीक है? And whatever you are making, just think that वो long run तक market में sustain करे. ऐसा ना हो कि वो basically कुछ time तक आपका product चले, उसके बाद वो market से product गायब हो जाए या फिर वो खत्म हो जाए मार्केट में, ठीक है? तो we just need to think about the we just need to avoid the marketing myopia, whatever we discussed in the last class, कि हमें जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो लॉन्ग रन में भी चलना चाहिए. ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म के लिए वो सेल हो रहा है बट लॉन्ग टर्म इट इज नॉट वर्किंग. नेक्स्ट इज encourage innovativeness. encourage innovativeness का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी क्रिएटिव आइडिया आपके पास आता है तो जस्ट यूज इट फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने में उसको यूज कीजिए, राइट? अगर आपको लगता है कि जैसे कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी मेथड्स, कोई भी टेक्निक्स अगर चेंज हो रहे हैं तो आपको बेसिकली प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में उसको यूज करना चाहिए. जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लें तो मोबाइल फोन में आपने देखा होगा कि हमेशा टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड होता है, चेंज होता है. एंड इफ द कंपनी इज नॉट अडॉप्टिंग दैट टेक्नोलॉजी, तो एज पर दैट क्या होगा सिचुएशन? द कंपनी विल डिसॉल्व सून. कंपनी नहीं चलेगा आगे. इसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेटर इसका एग्जाम्पल है आपका नोकिया मोबाइल फोन. व्हाई दैट वाज बेसिकली, व्हाई द प्रोडक्ट वाज फेल्ड इन द मार्केट? बिकॉज एंड्रॉइड वाज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड. एंड्रॉइड इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में एंड दे वर वर्किंग इन विंडोज, राइट? So when we are not upgrading the product, when we are not using the creativeness, when we are not increasing, enhance the quality of product, it is not able to sustain in the market, right? So we just need to always think about the innovativeness and to make the good quality product, right? Next is provide competitive era. Provide competitive era, what does it mean? That whenever whatever product you are making, just think about the competition as well, that where you are selling the product. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं आपको तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे आप देख लो टाइटन एंड ऑल, देयर ब्रांड इक्विटी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश इन द मार्केट. तो इनको जो compete करने वाले जो भी ब्रांड्स होते हैं वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट FMCG प्रोडक्ट्स लाइक फास्ट मूविंग, जो आपके कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, जो डेली यूज वाले प्रोडक्ट होते हैं, उसमें डे बाय डे कंपटीशन का लेवल काफी इंक्रीज हो रहा है. यू विल गेट मल्टीपल प्रोडक्ट. अगर आप कोई बाथिंग सोप भी लेने जा रहे हैं, यू विल गेट 100 ऑफ प्रोडक्ट्स, 100 ऑफ वेराइटीज, राइट? तो आप कहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो एरिया कौन सा है, वहां पर ऑलरेडी कौन सी कंपनी जो है वो चल रही है, प्रोडक्ट को सेल कैसे कर रही है. तो आपको कंपटीशन का भी ध्यान रखना है कि आप मार्केट में कॉम्पिटिटर से कैसे अलग और डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लेकर आते हैं, और साथ साथ प्राइस का भी पूरा ध्यान रखना है कि अगर कॉम्पिटिटर जो है वो कितना प्राइस सेट कर रहा है प्रोडक्ट का, और आप अपने प्रोडक्ट को जो सेम टाइप या सेम प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट है, तो ऐसे केस में आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना फिक्स कर रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए आप देखते होंगे कि जब भी हम 2 कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, या तो हम पेप्सी लेते हैं या फिर हम कोक लेते हैं, ऐसे केस में ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं होता है. नोटिस किया है कभी किसी ने? लाइक ऐसा नहीं कि एक जो है वो 50 रुपीज का तो एक 500 का है. कभी ऐसा देखा है इतना वास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्राइस का? ये क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है और आप सेम टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइक
Pepsi is also making soft drink, and Coke is also making soft drink. Both are doing the same work, so you cannot discriminate and you cannot make the price of one product in rupees 50 और एक 500. तो 500 rupees वाले का तो कभी सेल होगा ही नहीं, राइट? तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को देखना है, अपने कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखना है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट के लिए एक्शन ले रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, उसका भी पूरा ध्यान रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है, प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग से रिलेटेड, ठीक है? अगर आप नोटिस कीजिएगा तो अभी देखिए कि सैमसंग ने अभी 5G लॉन्च कर दिया है, देखा है सबने, मोबाइल फोन 5G लॉन्च कर दिया, नेटवर्क नहीं आया बट 5G मोबाइल मिलना अवेलेबल हो गया है। तो अब रेडमी भी जो है ना वो भी आ गया है इसके साथ, सेम वो लेकर आ गया है, वो भी 5G। तो ये क्या कर रहे हैं, लाइक अब ये इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट होगा, अब जो भी फोन बनेगा सब 5G लेकर आएंगे, बट वही होगा कि जो ब्रांड डिफरेंस है, लाइक अगर कोई सैमसंग है तो दे विल सेल इट इन द लार्ज प्राइस, बट रेडमी, ओप्पो, वीवो जो एक कैटेगरी के ब्रांड से दे विल सेल द प्रोडक्ट इन द सेम प्राइस और नियर बाई प्राइस के हिसाब से दे विल सेल। तो ये जो है ये हम कंपटीशन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर हम एक नॉर्मल एडिबल ऑयल का भी कंपैरिजन करें तो धारा हो, नेचर फ्रेश हो, थोड़ा सा पतंजलि का डिफरेंशिएट किया जा सकता है, अदरवाइज ये सबका प्राइस लगभग एक जैसा सेम रहता है और स्ट्रैटेजी भी सेम अडॉप्ट करते हैं ये, ठीक है? स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि अगर वो एक पॉली बैग में तेल पैक करके आएगा तो सारे लोग का वैसे ऑयल आपको वैसे ही मिल जाएगा, सेम टाइप के पैकेजिंग में। तो ये इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एज, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बनाइए वो इतना अट्रैक्टिव और कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहिए, प्राइस अपने कॉम्पिटिटर जैसा रखिए लेकिन क्वालिटी हमेशा इनहांस कीजिए। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी तय करते हैं। नेक्स्ट इज मेक्स बेटर यूज ऑफ रिसोर्स, मेक्स बेटर यूज ऑफ रिसोर्स। कभी भी कंपनी में कोशिश करना चाहिए कि जब एक आप प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट तरीका क्या हो सकता है कि आप रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप उसमें इफिशिएंट हैं, मतलब कि प्रोडक्ट में इफिशिएंट है उसको बनाने में, उसको प्रोड्यूस करने में, तो लॉन्ग टर्म में एक तो आप प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं, साथ साथ लो कॉस्ट में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि सारे रिसोर्स जो भी हम लगा रहे हैं, यानी जो भी रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, उसको हम इफिशिएंटली यूज कर सके। तो सिग्निफिकेंस में यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट बताया है। सबसे पहला अचीव प्रोडक्ट, मार्केट के हिसाब से फिट होना चाहिए प्रोडक्ट, पहला। दूसरा क्या होगा, सेकंड क्या होगा, इनकरेज इनोवेटिवनेस, यानी कि इनोवेटिव होना चाहिए प्रोडक्ट हमेशा, टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्रिएटिविटी कुछ भी आप ला सकते हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एज, ठीक है, कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। एंड देन लास्ट वन इज मेक बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज, मेक बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। अब मैं आप लोगों को एक इनोवेटिवनेस में एक और चीज बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने विम बार देखा होगा घर में, सब लोगों के घर में विम बार की टिकिया भी आती होगी, लिक्विड भी। अब तो देयर इज अ वन मोर थिंग दैट इज लिक्विड, राइट? So that is a kind of innovation, right? कि जब हम we are using the normal traditional टिकिया and now we are using the liquid one, ठीक है? So that is a part of innovation. The Vim bar, what they started doing, they are using the thin plastic sheet on the टिकिया, that's why वो जल्दी basically जल्दी वो खत्म ना हो जाए वो टिकिया, उसको हम लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके, ठीक है? तो वो बेसिकली वो भी एक इनोवेशन हुआ कि उन्होंने प्रोडक्ट में थोड़ी चेंजेस, प्रोडक्ट वगैरह में चेंजेस लेकर आना, ठीक है? तो ये सारे इनोवेटिवनेस, क्रिएशन या फिर अपग्रेडेशन है टेक्नोलॉजी में, आप टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे अर्लियर क्या आता था, वॉशिंग मशीन जो था बहुत ट्रेडिशनल होता था, उसमें आपको वाटर डालना होता था, सब कुछ, बस अब वो धोने का काम करता था, फिर उसको ड्राई करने के लिए भी अलग से फिर बहुत तरीके थे, लॉन्ग स्टेप्स था। फिर सेमी आया, अब क्या है, फुल्ली ऑटोमेटिक आता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट अपग्रेडेशन, राइट? तो ये सारी चीजें हमेशा लिखेगा और कभी भी अगर मार्केटिंग का पेपर आता है तो एग्जाम्पल जरूर स्ट्रैटेजी क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में प्रोडक्ट फिट हो, इनकरेज हो इनोवेटिवनेस, यानी कि जो बेसिकली हम कोई भी चेंजेस ला सके कॉम्पिटिटिव एज के लिए और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेवल ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। लिखिए लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी।
स्ट्रैटेजी। इसमें 2 पॉइंट लिखिए, उसके बाद मैं उसको समझाती हूँ। लिखिए प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, एंड नेक्स्ट लिखिए प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट मिक्स, MIX, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। When we are talking about the product line and product mix, just think about that is the level of product strategy, यानी product strategy का लेवल है ये। जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बेसिकली FMCG प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस ब्रांड है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अब यहाँ पर ये जो HUL है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, मल्टीपल प्रोडक्ट यानी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर आप मान लीजिए एक मिनट ठीक है। यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये अपने प्रोडक्ट्स को बना रहा है, और प्रोडक्ट को किस तरीके से बना रहा है देखिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक है इसका बाथिंग सोप, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर है आपका लॉन्ड्री वॉश, और एक है आपका बिवरेजेस। तो यहाँ पर एक है बाथिंग सोप, यहाँ पर एक है लॉन्ड्री वॉश, और यहाँ पर एक है बिवरेजेस, ठीक है। अब मान लो जो बाथिंग सोप जो है, उसके अंडर में भी इसके बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि आपके लक्स हो गया, डव हो गया, पियर्स हो गया, ठीक है, पियर्स हो गया। अब यहाँ लॉन्ड्री सोप में आपका सर्फ हो गया, सर्फ एक्सेल या सर्फ एक्सेल, रीन मान लीजिए, फिर यहाँ पर व्हील है, और बिवरेजेस में आप मान लीजिए यहाँ पर ब्रुक बॉन्ड, चाय पत्ती, ब्रुक बॉन्ड, यहाँ पर है ताजा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर एक लिप्टन भी है। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, थोड़ी सी हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रही है, ध्यान दीजिएगा, लिप्टन है ये। जब आपका कोई पर्टिकुलर कोई अगर एक प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है जिस सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट के साथ कितने प्रोडक्ट लाइन के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि आपने रिबॉक सुना होगा, तो रिबॉक के पहले शूज आते थे सर, तो शूज एक ही प्रोडक्ट लाइन के साथ रिबॉक काम करता था, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन इन विच यू आर बेसिकली, जिसमें आप एक टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं। यू आर मेकिंग ओनली सिंगल काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट लाइन का कंसेप्ट था। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जब एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरे प्रोडक्ट लाइन की तरफ मूव कर रहा है, दूसरे से एक और उसने नया इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोडक्ट लाइन, तो इसको कहते हैं विड्थ बढ़ना, यानी कि चौड़ाई बढ़ना, विड्थ बढ़ना, और इसको ही हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। यानी कि when the product line is increasing horizontally, and new product line is introduced, that is known as product mix, या फिर width, चौड़ाई बढ़ रहा है किसी भी कंपनी का, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में दे आर डीलिंग। क्लियर हो गया। जैसे सोप के साथ काम कर रहा है HUL, अब उसके पास लॉन्ड्री वॉश के साथ भी काम कर रहा है, बिवरेजेस के साथ भी काम कर रहा है, अभी तो और भी बहुत टाइप्स हैं, ठीक है। तो बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोग को 3 कैटेगरी बताया। तो when the product line is increasing
हॉरिजेंटली यानी चौड़ाई जब बढ़ रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन को जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स. When new product line are introduced in the company, when the new product line introduced in the company and company product line is moved horizontally, that is known as product mix. उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स. जैसे अगर मान लो कि एग्जाम्पल के लिए डिटॉल जो था, ठीक है, ऐसे ही मानो डिटॉल जो है, खैर वो थोड़ा सा अलग आ जाएगा इसलिए उसको रहने दो. आप रिबॉक का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बाटा का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, फिर आप कुछ और भी कंपनीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं. खैर मैक्स वगैरह तो उसमें तो बहुत सारे ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं, तो वी कांट टेक द एग्जाम्पल. बट यहाँ पर बाटा में क्या केस है कि जैसे पहले वो सिर्फ शूज और फुटवेयर्स बनाता था, अब वो बैग्स बनाता है. तो लाइक दे आर इंक्रीजिंग द डिफरेंट, दे आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट लाइन, दे आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट लाइन. यानी एक कैटेगरी से वो मूव करके दूसरे अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के कैटेगरी में. तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स. जब आपकी कंपनी इस तरीके से आगे बढ़ती है, प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाती है. अब जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन का, जब हम प्रोडक्ट लाइन का बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको लिखाया प्रोडक्ट लाइन, जब व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में जब आपके और भी प्रोडक्ट ऐड ऑन होते जाते हैं वर्टिकली, जब वर्टिकली यानी इस तरफ से आपके नए नए प्रोडक्ट ऐड ऑन होते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ. आगे लगा लीजिएगा प्रोडक्ट लाइन लेंथ, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ. जो मैंने आपको प्रोडक्ट लाइन लिखवा है ना, उसमें लेंथ भी आगे लगा लीजिए, प्रोडक्ट लाइन लेंथ. और ये प्रोडक्ट मिक्स या फिर प्रोडक्ट विड्थ मिक्स, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें आप. तो ये होता है बेसिकली प्रोडक्ट लाइन लेंथ और ये होता है प्रोडक्ट मिक्स. जब एक ही पर्टिकुलर लाइन में यानी एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड करते जाते हैं और इसको हॉरिजेंटली ये वर्टिकली बढ़ाते जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ. लेकिन वही जब प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट नया ही बिल्कुल प्रोडक्ट लाइन जब हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं दैट इज विड्थ. क्लियर हो गया. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि बाटा है, ठीक है, अब बाटा जो है वो शूज के साथ शूज डील कर रहा है और साथ साथ वो बैग्स बना रहा है. तो दो कैटेगरी जो अलग अलग कैटेगरी बढ़ते जा रहे हैं, चौड़ाई जो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ बेल्ट भी बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन लेंथ. ये मिक्स, प्रोडक्ट लाइन मिक्स, जब नए नए कैटेगरी नया प्रोडक्ट लाइन न्यू प्रोडक्ट लाइन जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन जब हम शूज के अंडर में ही फॉर्मल शूज, स्पोर्ट शूज, फिर फंकी शूज या फिर बोल सकते हैं कि कैजुअल शूज, तो इस तरीके में इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ. मतलब एक ही प्रोडक्ट लाइन में जब अलग अलग प्रोडक्ट लाते हैं तो उसको प्रोडक्ट लाइन लेंथ कहते हैं. और जब नया ही बिल्कुल प्रोडक्ट कैटेगरी और नया ही प्रोडक्ट लाइन जब हम लेकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स या प्रोडक्ट विड्थ. क्लियर हो गया सबको? सबको समझ आया? यस मैम. यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जब एक ही प्रोडक्ट, जो एक ही प्रोडक्ट लाइन है, जैसे शूज है तो उसी के अंडर में हम बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ. यानी इस तरीके से लंबाई बढ़ती जा रही है. लेकिन जब हम बिल्कुल नया प्रोडक्ट कैटेगरी ही लेकर आ जाते हैं और न्यू प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे मैं पहले शूज बना रही थी, अब मैंने बैग बनाना शुरू कर दिया, अब मैंने बेल्ट बनाना शुरू कर दिया, अब बैग्स के भी अंडर में मैं किस तरीके के स्लिंग्स बैग बना रही हूँ या फिर टोटे बैग्स बना रही हूँ, किस तरीके के बैग्स बना रही हूँ, तो ये एक प्रोडक्ट लाइन बढ़ना हुआ. और जब प्रोडक्ट लाइन नया नया आता जाए तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स या फिर प्रोडक्ट मिक्स विड्थ भी कहते हैं. क्लियर हो गया? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? समझ में आ गया? कोई बच्चा मुझे इस चीज का एग्जाम्पल देना चाहेगा लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का? याद रखिएगा कि विड्थ एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है. विड्थ एक्सटेंशन मतलब न्यू प्रोडक्ट लाइन. विड्थ एक्सटेंशन या प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट लाइन, नया ही बिल्कुल प्रोडक्ट लाइन बदल के दिया. और लेंथ एक्सटेंशन यानी प्रोडक्ट लाइन लेंथ
न्यू प्रोडक्ट आइटम इन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? कोई मुझे इस पे एग्जाम्पल देना चाहेगा? कोई भी एग्जाम्पल? Anyone who want to give the example? Yes, Ashutosh. Ma'am, for example, Reebok is making shoes. वो तो Then मैंने after बताया। him इसके अलावा ma'am, you give the example of Bata. तो वो भी मैंने बता दिया। Ma'am, They are making track suits, yes, ma'am. है ना? They are making track suits. They are making bags even. They are making casual clothes as well for gym and all. So sports से related के clothes they are making that, right? हाँ, तो that can be example. Okay. Anyone else who is going to give the example of the product line strategy? Nestle. It's a coffee. Nestle. Coffee. Maggie. And other thing also. Kit Kat. Chocolates. है ना? They are Chocolate, working yes. with three things, like they are working with the snacks, they are working with the beverage, as well as they are working with the chocolates, right? So they are basically increasing the product line, and that is known as product mix with. And within that particular कोई ऐसा example जो product line के लिए हो, product line के लिए जहाँ एक ही टाइप के प्रोडक्ट, एक ही टाइप के बेसिकली प्रोडक्ट में बहुत तरीके के ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराया हो किसी कंपनी ने। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बता दूं, कैडबरीज आप ले सकते हो। कैडबरी में क्या है कि कैडबरी जो है वो चॉकलेट्स कैटेगरी चॉकलेट बनाता है। अब चॉकलेट्स में भी उसकी बहुत वेराइटीज हैं, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन लेंथ, जहां पर वो बॉर्नविल भी बनाता है, वो कैडबरीज भी बनाता है, ठीक है? कैडबरी चॉकलेट्स जो होते हैं वो भी बनाता है। आई गेस जेम्स भी जो है वो भी कैडबरी के ही है। तो लाइक दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन द सिंगल प्रोडक्ट लाइन, एंड दैट इज प्रोडक्ट लाइन लेंथ। इसको कोई डाउट है इसमें? मैम ऐसा कोका कोला भी फंटा भी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज। आपके बेवरेजेस या फिर कह सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में दे आर मेकिंग वेराइटीज, राइट? तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट लाइन लेंथ में। जब एक पर्टिकुलर कोई कंपनी जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करती है, तो ऐसे केस में जब प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट लाइन आता है तब उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है? तो आई थिंक लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी सबके टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट। हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि हम जब प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका बेसिक फंक्शन क्या है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये मोबाइल फोन लूं तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है किसी भी मोबाइल फोन का? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी मोबाइल? calling and receiving, right? But now the phone is not only for that, that is that it have multiple functions, right? But when we are talking about total product concept, हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके फीचर्स को कैसे कैसे ऐड ऑन करते जाते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट में, ठीक है? बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विस का जो मेजर काम है वो क्या है? किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, उसकी नीड को समझना, ठीक है? प्रोडक्ट फिजिकल हो सकते हैं, टैंजिबल हो सकते हैं, एक वैल्यूएबल चीजें होती हैं जिसके लिए आप पैसा देते हो। लाइक एग्जांपल के लिए, इफ आई एम परचेजिंग दिस स्पेक, I am for what this specs is for, it is for using, right? मुझे इसे यूज करना है, my eyes are not as such, तो ठीक है, आई साइट वीक है तो अब मुझे इसकी जरूरत है, राइट? तो इसके लिए मैंने क्या दिया, ये मुझे एक वैल्यू दे रहा है, आई एम गिविंग अमाउंट, मैं पैसे दे रही हूँ क्योंकि इससे मुझे काम है, राइट? तो फिजिकल टैंजिबल गुड्स होते हैं प्रोडक्ट, वैल्यूएबल गुड्स होते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द, इसमें यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, लिखिए लेवल्स कौन कौन से हैं। कोर, टीपीसी में लिखिए टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट में लेवल्स होते हैं प्रोडक्ट के। रुकिए मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ, इसको कैसे ड्रॉ करना है ऐसे बनाइएगा इसको। सबसे पहले लिखिए, राउंड बनाइए, लिखिए कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट अभी सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कीजिएगा।
इसके ऊपर एक और ड्रॉ कीजिए, इसमें लिखिए एक्चुअल प्रोडक्ट, एपी एक्चुअल प्रोडक्ट, और इसके चारों तरफ एक और ड्रॉ कीजिए और इसको लिखिए ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एपी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। सबसे पहले लिखिए कोर प्रोडक्ट, फिर उसके ऊपर लिखिए एक्चुअल प्रोडक्ट और उसके ऊपर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो है internal, that is known as core product. When we are talking about core product, it means that what is the basic feature, what is the basic aim of making that product, what is the basic use of that particular product. जैसे मैंने मोबाइल फोन के बारे में बताया कि कोर और बेसिक चीज इसका क्या होगा, कॉलिंग एंड रिसीविंग, राइट, कॉल करना। तो कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो रेफर करता है वो बेनिफिट जो बिल्कुल कस्टमर की नीड और बेसिक चीज के साथ डेवलप किया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल में अब जैसे आप टूथ पाउडर लेते हैं या टूथ ब्रश लेते हैं, तो उसका बेसिक एम क्या होगा, ब्रश करना, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करेंगे। कोर प्रोडक्ट इज द थिंग that is the basic, what is the basic need of product, it determined in the core product। यानी core product यानी basic aim, basic function क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है। basic thing, basic core benefit अगर मोबाइल फोन का लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कम्युनिकेशन, that is calling and receiving, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला core benefit या core product, ठीक है। लिख लिया सबने? कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज अ कोर बेनिफिट, और वी कैन से दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? पहले की मैं कुछ आप लोगों को बताती हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा मैं आप लोग के बुक में गिवन है तो थोड़ा सा पॉइंट बताती हूँ। नीड एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो पहले ओल्ड प्रोडक्ट अगर किसी को ब्रश करना होता था तो पता है क्या यूज करते थे, दे आर यूजिंग द नीम स्टिक, आज भी लोग यूज करते हैं जिसको हम दतमन कहते हैं। फिर चारकोल यूज करते थे, चारकोल जो होता है दैट इज जो चारकोल वगैरह होता है उसको यूज करते थे। बहुत लोग नमक यूज करते थे, और तो अब लोग क्या यूज कर रहे हैं अगर देखा जाए तो टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, लिक्विड्स, है ना, दे आर यूजिंग नाउ दिस। तो लाइक द कोर बेनिफिट या कोर प्रोडक्ट भी थोड़ा सा चेंज हो गया पहले से, कि लाइक पहले एकदम एक्सट्रीम लेवल से लोग नेचुरल चीजों को यूज करते थे। अब यहाँ पर वापस से कोर प्रोडक्ट सबको क्लियर हो गया, मोबाइल लिख लिया, मोबाइल एंड कम्युनिकेशन। सेकेंड आइए एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट को हम प्रॉपरली देख सके, यानी कि उसमें अब आप क्या क्या चेंजेस लाइएगा, कैसे उसको मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं कंज्यूमर तक, उसकी पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, उसको डिजाइन कैसे दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी रखी है आपने, उसको ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द एक्चुअल प्रोडक्ट। यानी अगर मैं एक मोबाइल फोन बना रही हूँ तो मुझे पता है इसका बेसिक मुझे काम देना है कि कम्युनिकेशन में काम आए। अब मैं इसका जो है, इसका बॉडी जो है, इसका मैं बॉडी बना रही हूँ कि भाई प्रोडक्ट को किस तरीके से मुझे डिजाइन करना है, क्वालिटी में बनाऊंगी, एक फिजिकल प्रॉपर अपीयरेंस में दे रही हूँ इस पर्टिकुलर को कि ठीक है इसका काम है, अब इसको पैकेजिंग, इसका जो डिजाइनिंग वगैरह है स्लीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये एक्चुअल प्रोडक्ट में काम आएगा आपके, कि भाई हमें टैंजिबल और एक्चुअल प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट जो होता है, कोर बेनिफिट कॉलिंग के लिए, उसमें सिर्फ कॉलिंग का काम, इसके लुक्स वगैरह पे कोई काम नहीं। बट जब सेकेंड तरफ मूव करेंगे दैट इज एक्चुअल प्रोडक्ट, तब बेसिकली हम देखेंगे कि इसको हमें किस तरीके से डिजाइन देना है, कैमरा कहाँ रखना है, कितने कैमरा देंगे, पैकेजिंग कैसे करेंगे, डिजाइनिंग कैसे देंगे, और इसमें एडिशनल फीचर्स क्या दे सकते हैं, जैसे मैसेजेस का ऑप्शन दे दिया, गेम का ऑप्शन दे दिया। तो नाउ कोर बेनिफिट्स में जब हम और बेनिफिट्स या और फीचर्स एड ऑन कर रहे हैं, साथ साथ पैकेजिंग के बारे में सोच रहे हैं, डिजाइनिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्वालिटी मतलब सोच क्या रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, स्टाइल, डिजाइन, ब्रांडिंग दे रहे हैं कि अब इसका नाम क्या है, तो भाई ये हॉनर हुआई का ब्रांड है।
तो इसको अब हम कहेंगे कि एक अवेलेबल हो गया प्रॉपर फॉर्मेट में, तो इसको हम कहेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट। इसको क्या कहेंगे हम? एक्चुअल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि खाली ऊपर से एकदम किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया कि कोर प्रोडक्ट मतलब कि सबसे कोर बनाएंगे कि क्या इसका काम होगा प्रोडक्ट का पहला। अब उस कोर प्रोडक्ट में हमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है और मार्केट में किस तरीके से उसे शो करेंगे हम ओवरऑल। तो जैसे कि भाई इसकी डिजाइनिंग कर दी। अब लास्ट में आएगा, क्वालिटी में भी हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखेंगे कि भाई ड्यूरेबल होना चाहिए, कैपेसिटी सही होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। स्टाइल में भी देखेंगे, स्लीक होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो वी विल जस्ट थिंक अबाउट द साइज ऑफ द प्रोडक्ट। डिजाइनिंग के बारे में सोचेंगे कि कर्व होना चाहिए, स्ट्रेट और रेक्टेंगल होना चाहिए। लाइक ऑल दीज थिंग्स वी कैन जस्ट गोइंग टू कंसिडर इन द एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट में ये सारी चीजों के बारे में हम डिसीजन लेंगे। जब कोर बन गया, एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप हो गया, तो अब हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की तरफ मतलब नेक्स्ट लेवल की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेवल में आपका क्या होगा, जहां पर आप प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स जो हैं वो ऐड ऑन कर दीजिएगा बेसिकली एक्चुअल प्रोडक्ट में। कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बेनिफिट मतलब कि आपका कम्युनिकेशन। मोबाइल का एग्जांपल ले रहे हैं, मोबाइल का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, मोबाइल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसका जो कोर प्रोडक्ट होगा वो क्या, बेनिफिट क्या होगा, कम्युनिकेशन। देखो हैंडराइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, इसलिए आप सी से समझ जाइएगा, कम्युनिकेशन है, ओके, कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, इसमें आप क्या क्या चीज के बारे में देखिएगा, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ठीक है, कलर, स्टाइल, इसके बारे में आप एक्चुअल प्रोडक्ट में डिसाइड कीजिएगा। थर्ड जो है दैट इज आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। इसमें अब हम कुछ और चीजें ऐड ऑन करेंगे प्रोडक्ट के साथ, जैसे वारंटीज कितने साल का दे रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, फिर इसकी डिलीवरी सिस्टम क्या होगी, किस तरीके से प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, कस्टमर केयर कैसा है इसका, फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि आप इसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या और कोई ऐप से पेमेंट करने की सुविधा, सर्विसेज और क्या है एक्स्ट्रा, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया तो इंस्टॉलेशन कैसे है। तो ये सारी चीजें हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में डिसाइड करेंगे। यानी कोर प्रोडक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बेनिफिट डिसाइड करेंगे कि कोर बेनिफिट क्या होगा। एक्चुअल प्रोडक्ट यानी कि हम उसको किस तरीके से डिजाइन करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, फिर उसका स्टाइल करेंगे, कलर कैसा प्रोडक्ट का डालेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट में डिसाइड करेंगे। और जब हम लास्ट में ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें हम कुछ एडिशनल चीजों को ऐड ऑन करेंगे, जैसे वारंटीज, डिलीवरी, कस्टमर केयर सिस्टम, फाइनेंस कैसे कर रहे हैं, सर्विसेज क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है। और अगर हम मोबाइल फोन लें तो कोर कम्युनिकेशन, डिजाइनिंग में ब्रांड का नाम जैसे नोकिया, सैमसंग, MI, ठीक है, फिर इसके कलर में ब्लैक, व्हाइट, रेड कलर तो अवेलेबल है आपका, एग्जांपल में सैमसंग में तो ब्लू कलर अवेलेबल है, फिर ओशन ग्रीन कलर अवेलेबल है, देयर आर मल्टीपल कलर्स आर अवेलेबल। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, वारंटी क्या है इसकी, 6 महीने 1 साल वारंटी होती है प्रोडक्ट की। डिलीवरी आजकल तो ऑनलाइन डिलीवर भी हो जाता है, आप बुक करके आइएगा आपको ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पर कस्टमर केयर सर्विस भी, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं। और अगर अभी तो मोबाइल में सच कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल की जगह पे एसी लेते हैं तो एसी में आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती। अगर सर्विसेज भी, कई बार आप कार लेते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ सर्विसेज मिलती है कि 6 मंथ के बाद आप कार वॉश कराने आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें ऑगमेंटेड में जब हम एक प्रॉपर कोर के साथ एक एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसको हम ऑगमेंटेड लेवल पे लेके जाते हैं, जहां पर हम एक्चुअल प्रोडक्ट में और भी फैसिलिटीज को ऐड ऑन करते हैं। तो ये 3 लेवल जो था इसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट। किसी को कोई डाउट है इसमें? Anyone have any doubt in this? कंप्लीट किया, कंप्लीटेड द प्रोडक्ट लाइन। हम लोगों ने प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी कंप्लीट किया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी?
first point, and then second point we completed what are the levels of product strategy, that is product line and product line length and product mix. Then we completed the topic total product concept, that is core product, actual product and augmented product. सबको क्लियर हो गया? सब लोगों ने लिख लिया, ड्रॉ कर लिया? नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू द पैकेजिंग. अब प्रोडक्ट को हमें पैकेट्स में कैसे बनाना है. अच्छा, कितने लोग हैं पेस्ट लेने जाते हैं तो पेस्ट हमारे हाथ में तो नहीं दे देते हैं ना? देते हैं क्या? No, ट्यूब ma'am. में अवेलेबल होता है, राइट? दैट इज अवेलेबल इन वन ट्यूब. ट्रू और नॉट? क्रीम खरीदने जाते हैं तो क्रीम हमें ऐसे तोल करके प्लास्टिक में डाल के नहीं देते हैं. दे आर जस्ट गिविंग अस इन अ पर्टिकुलर पैकेट्स. तो उसका क्या यूज है, कितना रिलेवेंट है और कितने तरीके से पैकेजिंग होता है और क्यों वो जरूरी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास फ्राइडे.